Hello and welcome to another interesting episode of Tuesday Talks. My name is Iftikhar Ahmed and I'm the editor of Abir Pothi, which is India's only digital daily art newspaper. In Tuesday Talk, we have with us young emerging art practitioners, curators, or anybody who is indulged with art in any capacity. So we talk to them candidly and we bring out the best experience to the world. So today we have Sayantan Chakravarti from Kolkata, West Bengal. He is also the winner of First Take 2022. And let's welcome Sayantan. Sayantan, thank you so much for taking out time. And I would like to know, how are you? I'm fine. I'm really fine, and thank you, Abhi, for calling me and take my interview. For it, I am really excited for it. Sounds it clear? Sayantan, I think. yes. Much better, much better. Uh, First, would you like to take us quickly through how your art practice started? Is it uh, from your childhood, or is it from the college itself, or how it happened? ये एक लंबा स्टोरी है. When I am in completed my bachelor's in arts, in history actually. So I'll go to Rabindranath University and start my master's in history. So I saw college. I just go to Rabindranath University and saw actual art college what it is. तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट एकदम चाइल्डहुड से ही अपने प्रैक्टिस चला जा रहा था, कर जा रहा था, लेकिन वो प्रॉपर नहीं हो रहा था. तो मुझे मेरा कोई वैसा टीचर नहीं था कि जिसके पास जाके मैं सीखूँ हाउ टू मेक अ आर्ट और समथिंग एल्स. तो व्हेन आई एम गोइंग टू रविंद्र यूनिवर्सिटी, तो मैंने आर्ट कॉलेज सामने से देखा एंड मैं मुझे पता नहीं कैसे मुझे ये इच्छा है कि मैं वो आर्ट प्रैक्टिस ही करूँ और कुछ भी नहीं करूँ. तो मैं आई स्टॉप मास्टर्स इन हिस्ट्री एंड take a preparation and gave a art exam in Ravindra Bharati University, entrance exam actually, and then got chance and complete my bachelor's of fine arts in painting and master of fine arts in painting in Ravindra Bharati University. And that's where my art practices start from 2012 I think, and I just get chance in 2013 for a Bachelor of Arts, Bachelor of Fine Arts in painting at Ravindra Bharati University. So you did your bachelor's in history first, and then you did bachelor in arts and Bachelor of master. Fine Arts in painting, and then Bachelor Master's Fine Arts in painting. After that, I completed my Masters in 2019. All right. Sayantan, please tell me, how did you find your voice? If this is something I want to explore in my art, your theme. Because what I saw, most of your theme was related to migrant laborers, workers, working class, their aspirations, their sufferings, their problems, and everything. So, when did you realize this is gonna be your voice? हाँ, तो मेरा मैं जो वेस्ट बंगाल में रहता हूँ, यहाँ दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा इवेंट है. दुर्गा पूजा जो होता है ना, वो दुर्गा पूजा बहुत बड़ा एक इवेंट है. तो इधर एक एक पंडाल जो है वो एक एक आर्ट फॉर्म जैसा क्रिएट किया जाता है, लाइक इंस्टॉलेशन. तो इधर बहुत लड़के लोग को लिया जाता है काम के लिए. तो मैं भी आर्ट प्रैक्टिस के लिए तो पैसा लगता है, इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत वो काम कर लिया था, पैंडल में करता हूँ अभी तक. तो जब मैं वो पंडाल में काम करने के लिए गया, तो इस टाइप के लोगों से, इस क्लास के लोगों से मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशन हो गया, क्योंकि हम मुझे भी उस तरह से डील किया जा रहा था जैसे इन लोगों को सोसाइटी डील करता है. तो मैं उसी नज़रिए से इस लोगों मैंने इस क्लास को मैंने बहुत करीब से देखा. उसके साथ घुलने मिलने का मौका मिला मुझे, और मैंने देखा जो वो कैसे उन लोगों से सोसाइटी बिहेव करता है. पूजा पंडाल के लोगों को बोलिए और बाहर के लोगों को बोलिए, कैसे ट्रीट किया जाता है. तो वैसा चीज़ मुझे भी किया गया कभी कभी. तो कैसा मुझे ट्रीट वो किया गया? रिलेशन अच्छा, बुरा, एक कैसा? Can you give me example? वो मैं नहीं कहूँगा. तो मैं डायरेक्ट सोसाइटी को तो नहीं बोल सकता आपने ये बुरा किया, आपने ये अच्छा किया, तो अपना अपना बात है. लेकिन मुझे जो भी मिला वो
अच्छा बुरा मिला के ही हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा लगा कहीं पर इस लोगों के लिए बोलने के लिए कोई आ, आ, आगे आके बोलता नहीं है, दिखाता नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है, काम हो जाएगा, पैसा दे दिया, हो गया खत्म। तो वो मुझे बहुत हर्ट किया एक्चुअली। तो वो उसी जगह से मैं थोड़ा थोड़ा करके एक दो पेंटिंग, उसके बाद फिर मुझे लगा मैं रिलेट कर सकता हूँ उस लोगों को, इस क्लास को, तो इसलिए मैंने उसको इम्प्रूव किया। जाके मेरा सब्जेक्ट ही ये अभी बन चुका है। मैं इन लोगों के लिए लेके ही काम करता हूँ, सभी एंगल से, जितना जितना एंगल मुझे मिल रहा है, इनके लाइफ का बोलो, इसके फर्स्ट के लाइफ पर्सपेक्टिव्स बोलो, उन लोगों का नज़रिया क्या है, उन लोगों के लिए सोसाइटी का नज़रिया क्या है, वो सब मैं बहुत क्लोज से स्टडी करता हूँ। करके फिर मैं सोचता हूँ उन लोगों के लेके क्या किया जा सकता है। तो मेरा पेंटिंग का सब्जेक्ट ऐसे ही ग्रो कर गया। कभी कभी मैं काम करते 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 ये ऐसे ही मेरा सब्जेक्ट हो गया। स्टार्टेड मैंने मेरे ये लेबर क्लास को लेकर जो स्टार्टिंग है मेरा काम का, वो एकदम इसी जगह से स्टार्ट किया है। पैंडल में वर्क करते करते ही ये जो पार्ट है मेरा शुरू हुआ काम का। सैंतन, आप अपने आर्ट प्रैक्टिस के एवोल्यूशन को कैसे देखते हो? वेयर इज इट हेडिंग टूवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ इट्स थीम एंड द मटेरियल्स यू यूज? मेरे लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट के लिए मटेरियल है, मटेरियल के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे कॉन्सेप्ट को जो मटेरियल चाहिए होगा दिखाने के लिए, मैं वो मटेरियल काम में यूज़ करूँगा। और जो मटेरियल पहले सोच के उसके बाद कॉन्सेप्ट में उसको, कॉन्सेप्ट को उसमें डाल के मुझे दिखाना, जो दिखाना होता है, वो मुझे आर्ट नहीं लगता। बट फर्स्ट यू हैव टू चूज your subject, your concept, you're clear about it, then you choose what type of material goes to your subject, then you do it. तो मटेरियल को लेके अलग करके कुछ प्रैक्टिस करना, कुछ इवॉल्व करना, मटेरियल से कुछ निकाल के सब्जेक्ट में देना, ये मेरा प्रैक्टिस का वे आउट नहीं है। फर्स्ट आई चूज माई कॉन्सेप्ट, व्हाट इज माई सब्जेक्ट ऑन दिस पेंटिंग, देन मैं वो मेरा मटेरियल चूज करता हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत क्लियर होता है। एक होता है एक्सीडेंटल पेंटिंग, और एक होता है आप सोच के पेंटिंग करते हो, कुछ फ्रेम आउट करके पेंटिंग करते हो। मेरा काम जो है वो एक्सीडेंटल पेंटिंग से रिलेटेड नहीं होता है, मैं सोच के ही काम करता हूँ। मेरा एक लेआउट होता है काम का, उस लेआउट को मैं कन्वर्ट करता हूँ बड़े फ्रेम में, फिर लेआउट करता हूँ। जैसे जैसे वो पेंटिंग जाता है वैसे वैसे मैं लेआउट चेंज करता रहता हूँ। तो मेरा वो एक बहुत ही क्लियर कट फ्रेम होता है पेंटिंग का। तो मेरा लिए वो मटेरियल का इवॉल्वमेंट बहुत मैटर नहीं करता। मेरा जैसा कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही मटेरियल चूज करता हूँ, उस मटेरियल से काम करता हूँ। Can you talk more about the materials that you particularly use and why? Why do you use? पेन एंड इंक में बहुत सारा काम करता हूँ। पेन एंड इंक मेरा बहुत फेवरेट मटेरियल है, क्योंकि ब्लैक, मुझे लगता है मैं जिस क्लास को लेकर काम करता हूँ उसमें ब्लैक बहुत अच्छा जाता है। इंक का जो ब्लैक है, कलर का जो ब्लैक है वो नहीं, इंक का जो ब्लैक है वो बहुत अच्छे से जाता है। इसलिए मैं इंक का ब्लैक यूज़ करता हूँ ज़्यादा। इससे ज़्यादा मैं एक्रेलिक में ही बहुत सारा काम किया है, और मिक्स मीडिया में भी काम करता हूँ। कभी कभी ऑयल पेस्टल कर लेता हूँ, सॉफ्ट पेस्टल के ऊपर एक्रेलिक कर लेता हूँ। मिक्स मीडिया भी बहुत मुझे अच्छा लगता है। अभी मैं थोड़ा बहुत स्कल्पचर भी कुछ कर रहा हूँ फाइबर कास्टिंग में। और मेरा मटेरियल को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मैंने किया है अभी तक, ऐसा नहीं है। बहुत बेसिक एंड ऑथेंटिक मीडियम से काम करना मुझे अच्छा लगता है। लाइक एक्रेलिक हो गया, पेन एंड इंक हो गया, वाटर कलर हो गया। और ऑयल तो मेरा, हमारा इधर ऑयल जो है वो वेस्ट बंगाल का वेदर सपोर्टेड नहीं है, इसलिए मैं ऑयल में नहीं जाता। लेकिन जो ऑथेंटिक मटेरियल है उसमें घूमता फिरता रहता हूँ। So अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हो? Are you doing art full time or अभी you have other gigs as well? जॉब जॉब कर रहा हूँ। अभी जॉब के साथ ही काम कर रहा हूँ। जॉब तो करना होगा सर, लेकिन पेंटिंग कैसे करूँ मैं? फुल टाइम प्रैक्टिस करने के लिए तो जॉब करना ज़रूरी है। पैसे नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।
पेंटिंग में, आर्ट फील्ड में आई थिंक, क्योंकि आपको एक काम अगर किसी एग्जीबिशन में आप भेजना चाहोगे तो उसका कुरियर कॉस्ट है, उसको करने का कॉस्ट है, उसको आने का कॉस्ट, ले जाने का कॉस्ट है। हर वक्त आपको अवॉइडेड नहीं किया जाता कि आप ये कर लेते हो, तो वो खर्चा चलाने के लिए जॉब तो करना होगा। इसीलिए मैं एक जॉब जॉब आप करता हूँ क्या अभी, और जॉब करते साथ हो, इफ आई मे आस्क? एक क्लरिकल जॉब कर रहा हूँ मैं अभी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर। वो मेरे, और उसके साथ में मेरा प्रैक्टिस करते जा रहा हूँ। तो कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं आप जॉब को तो एंड अपने आर्ट प्रैक्टिस को? मेरा यू मस्ट मेरा हैव जो जॉब फैमिली, फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, मेरा कैसे बैलेंस करके चल रहे हो? है जॉब का, वो 11:30 से 5:30 तक है। तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छे से टाइम मिल जाता है आर्ट प्रैक्टिस के लिए, और सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाता है मुझे। और मेरे अभी तक फैमिली, आई एम नॉट स्टार्टेड माई फैमिली येट। तो मेरा माँ है मेरे साथ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। मेरा बहुत कोई दोस्त वोस्त भी नहीं है कि बहुत टाइम देना पड़ता है, बाहर जाता हूँ, घूमता हूँ। मैं जो है वो पेंटिंग लेके ही रहता हूँ, हर वक्त काम को लेके ही रहता हूँ। और मेरा जो वो ये फ्रेंड ओरिएंटेशन है, वो भी ये काम लेके ही रहते हैं। तो मेरा आर्ट से बाहर निकल कर टाइम देना, उसके बाद आर्ट प्रैक्टिस में वापस आना, ये कभी नहीं हुआ है। जब से मैंने आर्ट प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, मैंने टाइम जो है वो आर्ट में ही दिया है। और उसको उस ओरिएंटेड कोई काम हो, अगर आप जॉब भी बोले, वो भी मैं आर्ट प्रैक्टिस के लिए ही कर रहा हूँ। तो वो मुझे नहीं लगता कि आर्ट प्रैक्टिस से बाहर जाके मैं काम करके फिर आर्ट प्रैक्टिस में लौट रहा हूँ। मेरा जो दिन भर का जो रूटीन है वो आर्ट प्रैक्टिस में ही रहता है, आर्ट प्रैक्टिस को लेके ही रहता है। तो उससे निकल के मैं कभी काम नहीं किया, तो आपको नहीं बोल सकता मैं ये बैलेंस कर रहा हूँ, ये दोस्त को टाइम दे रहा हूँ, ये मम्मी को टाइम दे रहा हूँ, ये फिर आके मैंने आर्ट प्रैक्टिस कर लिया, फिर जाके एक एग्जीबिशन देख लिया। ऐसा तो कोई प्लानिंग वैसा तो मैं कभी हैंडल नहीं किया कभी। सब कुछ जो मेरा ओरिएंटेड, जो भी मैं करता हूँ आर्ट ओरिएंटेड ही करता हूँ, आर्ट प्रैक्टिस को ओरिएंटेड करके ही करता हूँ। तो मेरा कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। येट आई एम नॉट स्टार्टेड बाई फैमिली, तो वो तो मैं नहीं आपको बोल सकता। उसके बाद शादी करने के बाद क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है। अच्छा सैंतन, हाउ डू यू सी योर ऑडियंस परसीव योर आर्ट वर्क? क्या लगता है उनको, आपको क्या लगता है वो कैसे अपने आर्ट मेरा वर्क को देख रहे हैं? क्या वो मैसेज मैं जा रहा है जो आप पहुंचाना चाह रहे हैं, वो कन्वे हो पा रहा है? या यू आर हैप्पी बाय सीइंग दैट ऑडियंस इज कमिंग अप विद देयर ओन सेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन? नो, मेरा जो काम का प्रोसेस है वो डायरेक्ट है थोड़ा। तो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कट, एक डायरेक्ट ओरिएंटेशन रहता है मेरे काम का। तो उससे आप अगर मेरे आर्ट वर्क के सामने खड़े होगे, तो मैं जो बोलना चाहता हूँ वो आपको डायरेक्ट दिखेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक अलग टोन में खड़ा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, कोई अंडर टोन क्रिएट कर दिया, आप सोच रहे हो आपके जैसे, मैं सोच रहा हूँ मेरे जैसे। ऐसा मेरा पेंटिंग होता नहीं है। मेरा जो पेंटिंग है उसका जो, मैं जो बहुत सोच के काम करता हूँ ना, मैं एक्सीडेंटल वर्क नहीं करता, मैं सोच के काम करता हूँ। तो मेरा जो वो बाजिक टाइप का एक बात चला आता है काम में, जब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ। तो वो जब भी उसके सामने कोई भी मेरा ऑडियंस आ जाए, मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको दिखेगा, और वो वही रिलेट करेगा मेरे आर्टवर्क के सामने खड़े होकर। वो जो अपने टाइप का इंटरप्रिटेशन, आपके टाइप का जो क्रिएशन, वो मेरे पेंटिंग के सामने खड़े होकर क्रिएट नहीं होता। वो एक बात है। मैं जो बोलना चाहता हूँ वो मैं सीधे दिखाता हूँ, और बहुत इजी वे से दिखाता हूँ। मैं इतना टाइम से 2013 से मैं आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उससे मेरा एक आइडिया है कि अगर आप आपके काम को थोड़ा इजी रखो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, तो वो बहुत अच्छे से सबके पास पहुँचता है। आप बहुत अच्छे, मुझे मेरा काम की एक सेंस ऑफ प्रोटेस्ट है मेरे काम में। तो सेंस ऑफ प्रोटेस्ट होने के लिए मुझे ये लगता है वो प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से, बहुत सही से अगर ऑडियंस के सामने पहुंचा दिया जाए, बहुत वो बोलते हैं इजीएस्ट वे से पहुंचा दिया जाए, तो वो बहुत अच्छा होगा। तो वो मेरा सोच है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये सही सोच है, लेकिन ये मेरा सोच है। तो मैं ऐसे ही देखता हूँ।
तो इसलिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो काम है, मेरा जो दिखाने का प्रोसीड्योर है, वो थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाता है इसीलिए। तो वो इसीलिए ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और खुद का इंटरप्रिटेशन अगर मैं जैसे उन लोगों से लिंक किया हूँ, मुझे ऐसे कोई अपने आप को अगर लिंक करता है तो वो खुद का एक इंटरप्रिटेशन खड़ा कर सकता है। लेकिन मेरा काम इतना इजीएस्ट वे से करता हूँ मैं कि वो मेरा कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा किसी को। खुद का इंटरप्रिटेशन खड़ा करने का जगह जो है काम में वो थोड़ा कम है मेरे मेरे पेंटिंग्स में। Hmm. Do you think your art is inspired by some artists? आप किन से इंस्पिरेशन लेते हो आप? एक मेरा जो इंस्पिरेशन वो 2-3 आर्टिस्ट से है, लेकिन उससे मेरा काम का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन उसका जो हम्म। कॉन्सेंशुअल थॉट, उनका जो आर्ट प्रैक्टिस का टाइप है, कॉन्सेंशुअल थॉट है, वो मुझे बहुत पसंद आता है। मैं उसको लेता हूँ उनसे। एक है गणेश पाइन और एक है पार्थप्रतिम देव और जोगेन चौधरी है। दिल्ली से भी 2-3 आर्टिस्ट है, मुझे बहुत पसंद है उनका काम। और बाहर से भी, लेकिन मैं गणेश पाइन का बहुत बड़ा फैन हूँ। आप जानते हो गणेश पाइन का नाम सुने हो? Of course, of course, of course. वेस्ट बंगाल आर्टिस्ट, बहुत बहुत एशिया बेस्ड है, क्या इंटरनेशनल बेस्ड आर्टिस्ट है वो। Hmm. उनका जो काम करने का प्रोसेस है, मैं टेक्निक और कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊँगा। वो सुबह से लेकर रात तक अपने पेंटिंग को लेके ही रहते थे और उनको निकालना काम से बहुत मुश्किल होता था। वो कभी बाहर की दुनिया में गए ही नहीं, वो अपने ही काम को लेकर जितना दिन तक वो जिंदा रहे वो वही करते रहे। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। पार्थप्रतिम देव सर जो है हमारा यूनिवर्सिटी का है सर, वो अभी तो बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट है पार्थप्रतिम देव। वो भी जब भी सर को देखता हूँ तभी वो काम ही करते रहते हैं, काम ही करते रहते हैं। उसका एज अभी 80 आप हो गया है, लेकिन आप एक यंग आर्टिस्ट से ज़्यादा वो काम करते हैं दिन भर। सुबह सुबह उठ जाते हैं, उठ के काम करना स्टार्ट करते हैं, रात को सोते वक्त भी काम ही करते रहते हैं। मैं ऐसा वो अलग एक इंस्पिरेशन देता है मुझे। इतना टाइम तक 80 अबव 80 ईयर्स तक एक आदमी ऐसा काम करते जा रहा है तो कैसा इंस्पिरेशन है वो आप समझे। तो ये लोग मुझे बहुत इंस्पिरेशन देते हैं काम के लिए। True. Sayantan, I would like to know about first take. So, आप विनर रह चुके हैं फर्स्ट टेक 2022 के। आई वुड लाइक टू नो जी। कि हाउ डिड यू कम टू नो about Abir India and first take, and how was your journey after that? Has it changed मेरा anything? मुझे पता चला आबिर के बारे में, मेरा से सीनियर है कॉलेज में, सीनियर था। उन्होंने वो भी आबिर फास्टैग का विनर था, तो उन्होंने शेयर किया था उन आबिर का लिंक, तो उससे मुझे पता चला आबिर के बारे में। तो उधर से जाके मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करके तो मुझे काम मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद अवार्ड भी हुआ। फिर उनका जो हॉस्पिटैलिटी था वो इतना अच्छा था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका जो एटीट्यूड है यंग आर्टिस्ट के तरफ, वो बहुत ही अच्छा है। और उनका जो काम सिलेक्शन मैंने देखा, हमारा जो फास्टैग हुआ था वो बीकानेर हाउस में हुआ था, दिल्ली में, अहमदाबाद में नहीं हुआ था। उस साल दिल्ली में था। तो वो बीकानेर हाउस में 2 एग्जीबिशन एक साथ हुआ था, एक फास्टैग विनर्स को लेके और एक हमारा जो एनुअल शो होता है उनका, वो हुआ था फास्टैग 2022। तो वो जो उनका जो आर्टवर्क सिलेक्शन था वो बहुत ही बढ़िया था। और उसका जो डिस्प्ले भी हुआ था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लगा वो जो 2022 में मैं विनर्स हो गया, उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ एक लिंक रखा। उन्होंने काम मांगा, काम मांग के अपने ऑनलाइन में उसको दिखाया, फिर वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे साथ। उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुझे बोला कि 6 महीने हो चुका है, फिर अपना काम भेजो और फिर मैं एक कांटेक्ट करो हमारे साथ। ये जो लिंक रहता है, आपने अभी कॉल किया इंटरव्यू के लिए, एक जगह अगर आपको अवार्डेड हो भी जाओ आप इधर से ही, तो अवार्ड देने के बाद वैसा कोई लिंक नहीं रहता गैलरी के साथ। आर्टिस्ट का अवार्ड दे दिया, वो हो गया उस साल के लिए।
लेकिन आबिर का जो बात है वो हाथ नहीं छोड़ते कभी आर्टिस्ट के। जब वो आपको सिलेक्शन कर लिया एज अ विनर, वो आपको लेके काम करते ही रहते हैं, जैसे भी करे थोड़ा बहुत वो जैसे जैसे आपको मौका देते रहते हैं, वो आपको लेकर सोचते रहते हैं, ये करा वो एक आबिर पोथी के लिए किया, कभी आपने आप मेरा 4 काम को लेके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसको दिखाया ऑनलाइन में, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी बोला। एक लिंक रहता है, रह चुका है आबिर के लिए। आबिर फास्टैग के बाद मेरा रिकॉग्नाइजेशन तो हुआ है, बहुत जगह में अच्छे से रिकॉग्नाइजेशन हुआ है मेरा आबिर फास्टैग विनर होने के बाद। वो तो थोड़ा मुझे हेल्प किया है। और उसके बाद आबिर के बाद मेरा जो काम है थोड़ा आबिर के लिए चेंज हुआ ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आबिर के बाद मेरा काम दिखाने के बाद मुझे वो अवार्ड मिलने के बाद एक अलग से इंस्पिरेशन मिला, तो मेरे काम में भी बहुत चेंजेस आया उसके लिए मेरे काम में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। अभी मेरा काम थोड़ा अपग्रेडेड भी हुआ है, और मैं अभी 2-3 काम चार काम मैं अभी मैं फिर से भेजूंगा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो चलता रहेगा अभी से। अभी ऐसा ही है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए अभी। मैंने मेरे दोस्तों को, वो मेरे सीनियर को भी जो नहीं जानते थे इस साल, मैंने बोला आबिर के लिए, और उन्होंने अप्लाई भी किया है। उनमें से बहुत 2-3 को चांस भी मिला है आबिर में इस साल एग्जीबिशन के लिए 2024 में। तो हाँ, एक अच्छा सा कनेक्शन है तो आबिर के साथ मेरा। One last question I would like to ask you, and that is, what does success mean to you? सक्सेस मेरे लिए है मेरा काम जितना ऑडियंस को मैं दिखा सकता हूँ मैं दिखाऊँ, वो मेरे लिए सक्सेस है। मेरे काम को कितने लोगों के पास मैं भेज सकता हूँ वही मेरा सक्सेस है। मेरे थॉट प्रोसेस को मेरे काम में क्योंकि सेंस ऑफ प्रोटेस्ट है। अगर आप किसी चीज़ को लेके प्रोटेस्ट करते हो, आप चाहते हो कि वो प्रोटेस्ट सबके पास पहुँचे, सबके पास पहुँच जाए, तो मैं वो पहुँचाना ही हमारा काम है। और आप एक एक सक्सेस है कि आप जो करना चाहते हो फ्रेम में आप वो कर सकते हो। एक आर्टवर्क में आप जो सोचते हो वो आप कर सकते हो, वो एक सक्सेस है। और दूसरा सक्सेस जो है वो आप जो फ्रेम में किया हो वो आप सबके पास पहुंचाओ। एक सक्सेस जो है वो आपके खुद के पास है, और एक सक्सेस का जो है उसके लिए आपको सोसाइटी का हेल्प लगता है, और आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ता है। आप मैं जितना मेरे काम ऑडियंस को दिखा सकता हूँ वही मेरे लिए सक्सेस है। Well, thank you so much, Sayantan, and बहुत मजा आया आपसे बात करके, काफी नई चीजें जानने को मिली। एंड थैंक यू सो मच, कीप अस पोस्टेड। जो भी कर रहे हैं, आर्ट एग्जीबिशन, एनीथिंग, कीप अस पोस्टेड। लव टू राइट अबाउट यू, योर आर्ट वर्क, एंड मच मोर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।